Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today in the series of 11th Commerce CCSP, we'll be starting with third chapter of SP portion, that is incorporation of company. Before starting with the chapter, let us go through what we will be learning in this chapter. So we'll be starting with the actual meaning of company. In the previous chapters we have learned about secretary and company secretary, but we'll now learn what is the meaning of company. So meaning and definition of company. Then we'll learn about characteristics of company. After learning the characteristics, we'll be going through the process of formation of company. Generally the process of formation is divided into two stages, that is preliminary stage and incorporation stage. We'll be learning about that both the two stage. So that is all what we are going to learn in this chapter. So देखा जाए तो चैप्टर के दो मेन पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हम कंपनी के बारे में और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी के बारे में जानते हैं. हम जानते हैं कि कंपनी क्या है, कंपनी के डेफिनेशंस क्या है, मीनिंग क्या है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर्स क्या है, फीचर्स क्या है. और सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कंपनी फॉर्म करनी होती है तो उसका कंपनी का फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है. कंपनी का फॉर्मेशन प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक इनकॉर्पोरेशन स्टेज कहते हैं और उससे पहले आता है एक प्रीलिमिनरी स्टेज. ओके, so probably we'll be finishing out this chapter in two sessions. Okay, so starting with today's session, first we'll learn about the company. Okay, so let us start. Introduction. In a commercial setup for large scale trade, the formation of company is the most suitable arrangement. Company possesses artificial personality. Its legal personality does not automatically come up into existence. The procedure for incorporation of company is complicated and lengthy. Sole proprietorship firm can be established easily. The nature of partnership firm is broader than the sole proprietorship firm. The registration of a partnership firm is optional as compared to the incorporation procedure of company is lengthy, complicated and expensive. A company can come into existence after having complied with the provisions of Companies Act, registration of necessary documents and completion of legal procedure. The person who establish such artificial legal personality are known as promoters. ओके, सो क्या कह रहे हैं कि कंपनी जब जहां भी हमें लार्ज स्केल सेटअप चाहिए, सो कंपनी इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर द सेम. कंपनी के पास एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी होती है, लीगल एग्जिस्टेंस होता है और सेपरेट आइडेंटिटी होती है. ओके, और ये कहा गया है कि प्रोसीजर जो है कंपनी का फॉर्म करने का, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन स्टेज का, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी एज वेल एज एक्सपेंसिव प्रोसेस है. हाँ, हमने विल बी स्टडिंग इन चैप्टर नंबर 5 ऑफ ओसीएम के सोर्सेज और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, कितने तरह के बिजनेसेस होते हैं. उसमें एक सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, उससे अपग्रेडेड पार्टनरशिप, उससे अपग्रेडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी, उससे अपग्रेडेड कंपनी. ओके, सो कंपनी अभी फिलहाल ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज़्यादा अपग्रेडेड माना जाता है. सो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस और एक्सपेंसिव प्रोसेस इसको सेटिंग अप करना होता है. ओके, और ऐसे लोग जो कंपनीज को सेटअप करने में हेल्प करते हैं, पूरी प्रोसेस को फुलफिल करते हैं, पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जो भी लीगल प्रोविजंस है उनको फॉलो करके, या फिर कंपनीज एक्ट के जो रजिस्ट्रेशन है उनको सारे रजिस्ट्रेशन करके जो कंपनी को फॉर्म करते हैं, उन लोगों को हम क्या कहते हैं? उन लोगों को हम कहते हैं प्रमोटर्स. दे आर नोन एज प्रमोटर्स. ओके, नेक्स्ट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ company. So talking about the meaning, the word company has no strictly technical or legal meaning. company word का कोई legal meaning या technical meaning नहीं है. अगर ब्रिटिश कॉमन लॉ की बात करें तो कंपनी का मतलब है लीगल पर्सन और लीगल एंटिटी. ओके, सो इट इज सेपरेट फ्रॉम कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग बियॉन्ड द लाइव्स ऑफ इट्स मेंबर. द मेंबर ऑफ एनी कंपनी में चेंज, रिटायर और डाई, बट इट डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी. कंपनी का मीनिंग में लीगल पर्सन और लीगल एंटिटी क्यों कहा गया है? इसलिए कि उसके खुद के मेंबर्स से या खुद के ओनर से एक अलग आइडेंटिटी है. अगर कंपनी के मेंबर्स चेंज भी हो जाते हैं, रिटायर भी हो जाते हैं या डेथ भी हो जाती है, तो भी कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, कंपनी का एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन,
कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डेफिनेशन दी गई है, लेकिन वो डेफिनेशन का कोई सेंस नहीं है। डेफिनेशन क्या कहती है, ऐसी कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है या कोई भी कंपनीज एक्ट प्रीवियस के अंदर रजिस्टर्ड है उसको हम कंपनी कहेंगे। ओके, तो ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे कोई भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है उसको हम कंपनी मान लेते हैं। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, दो पार्टनर है और हमने रजिस्टर्ड करा लिया उसको कंपनीज फर्म में, तो वो कंपनी हो जाएगी। ओके, सो दिस इज कंपनी। नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर टुडेज सेशन। आज के सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे ज्यादा काम आने वाला टॉपिक है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। Independent corporate existence is one of the most significant feature of company. Company is regarded as legal person having entire distinct personality, independent from its member. पहली कैरेक्टरिस्टिक कहती है कि जो भी कंपनी है उसको हम लीगल पर्सन मानते हैं, और वो भी ऐसा लीगल पर्सन जो इंडिपेंडेंट है या फिर जिसकी पर्सनैलिटी उसके खुद के मेंबर्स से इंडिपेंडेंट है, जिसकी पर्सनैलिटी उसके मेंबर्स पर डिपेंडेंट नहीं है, दैट इज इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। ओके, लीगल पर्सन की ऐसे कंपनी एक ऐसी एक लीगल पर्सन है जिसकी पूरी पर्सनैलिटी उसके मेंबर्स से इंडिपेंडेंट है, उसके मेंबर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ओके, सेकंड इज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनीज मेंबर। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होने से जो उसके असेट्स हैं या जो उसकी लायबिलिटीज है उससे बाउंड रहती है। ओके, members even as a whole or neither are the owners of the company's undertaking not liable for its debt. The members' liability is limited only to the nominal value of share taken by them. No member is bound to contribute more than the nominal value of shares held by them. However, the company with unlimited liabilities can be formed. अब दो तरह की कंपनीज होती है, कंपनी विद लिमिटेड लाइबिलिटी और कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सबसे पहले तो लाइबिलिटी का मीनिंग, लाइबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी चीज को पे करना हो तो हमारी लाइबिलिटी है। ओके, तो ऐसी कंपनी जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी से बनी है तो उसमें तो हम कोई कुछ नहीं कर सकते। उसमें तो अगर कंपनी को 10 लाख रुपए की कंपनी की नेटवर्थ है और कंपनी को 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया तो भी उनको वो पे करना पड़ेगा, खुद की असेट्स बेच के पे करना पड़ेगा, पर्सनल असेट्स सेल करके वो डेट्स पे करना पड़ेगा। दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ओके, बट इन द केस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, भले ही कंपनी ने कुछ भी किया हो, भले ही कंपनी को कितना भी लॉस हो, लेकिन जो उसके मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कहाँ तक है, जितने रुपए के शेयर्स उन्होंने परचेज किए हो और उसमें कुछ पेमेंट बाकी हो, वहां तक की लाइबिलिटी ही सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स की होती है। उससे 1 रुपये भी ज़्यादा या उससे कुछ भी एक्स्ट्रा लाइबिलिटी मेंबर्स की होती नहीं है। ओके, सो दिस वाज सेकंड पॉइंट। थर्ड इज परपीचुअल एग्जिस्टेंस। परपीचुअल एग्जिस्टेंस मीन्स कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हम कंपनी को क्या मानते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। ओके, और हम उसको मानते हैं इट हैज अ परपीचुअल एग्जिस्टेंस। परपीचुअल एग्जिस्टेंस मीन्स कि किसी भी मेंबर को डेथ हो गई, इलनेस हो गई, ल्यूनेसिटी मीन्स पागल हो गए या रिटायर हो गए, ओके, तो उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क होगा नहीं। दैट इज नोन एज परपीचुअल एग्जिस्टेंस। परपीचुअल मीन्स कंटिन्यूअस। तो हम ये मानते हैं कंपनी हमेशा चलती ही रहेगी, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। ओके, देन नेक्स्ट इज सेपरेट प्रॉपर्टी। जैसे फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी थी कंपनी की, एक सेपरेट लीगल पर्सन है, उनकी उसकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। तो कंपनी इज कैपेबल ऑफ परचेजिंग असेट्स और ओनिंग असेट्स इन इट्स ओन नेम। कंपनी खुद के नाम पे असेट्स या प्रॉपर्टीज परचेज कर सकती है या सेल कर सकती है, खुद कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है। उनको जरूरी नहीं है कि उनके एम्प्लॉयज के नाम पे या ओनर्स के नाम पे या मेंबर्स के नाम पे ही वो प्रॉपर्टी क्लेम करनी होगी, नहीं, वो खुद के नाम से ही वो प्रॉपर्टी क्लेम कर सकती है, परचेज कर सकती है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर क्या कहता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी का।
अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको शेयर ट्रांसफर की परमिशन दे रखी हो तो आप खुद की कंपनी के शेयर या किसी भी कंपनी के शेयर किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू सू एंड बी सूड। हमने पहले कहा कि कंपनी एक लीगल सेपरेट पर्सन है, लीगल सेपरेट आइडेंटिटी है, तो बीइंग अ लीगल पर्सन कंपनी खुद भी इनिशिएट कर सकती है लीगल प्रोसीडिंग्स को किसी के अगेंस्ट में, या कोई भी कंपनी के अगेंस्ट में कंपनी को स्यू कर सकता है। स्यू मीन्स केस करना, तो कोई भी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है या कंपनी भी किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो। ओके, नेक्स्ट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट सेक्टर को तो पहले से ही कैपेबल है कंपनी, जनरली कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो भी होगा वो छोटा मोटा तो होगा नहीं, लार्ज स्केल या मीडियम स्केल ही होगा, तो वो हमेशा प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर करके उनको मेंटेन करने के लिए उनके लिए इजी जॉब है। सो कंपनी का मैनेजमेंट हमेशा अच्छा होता है। ओके, एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज फाइनेंसेस। ओके, और फाइनेंसेस की बात करें तो कंपनी कैपिटल रेस करके ही अपनी फाइनेंसिंग करती है। कैपिटल रेस करके मीन्स जो भी मेंबर्स है उनसे कहेंगे कि वो इतने इतने शेयर्स परचेज कर ले, डायरेक्टर्स शेयर्स परचेज करेंगे, तो मेंबर्स शेयर परचेज करेंगे, प्लस जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको भी शेयर्स दे दिए जाएंगे। तो जितने शेयर्स परचेज होंगे उतनी कैपिटल एक कंपनी की बनेगी। क्लियर? सो दिस वाज टुडे सेशन। आज हमने जाना कि कंपनी क्या होता है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। इन द नेक्स्ट सेशन विल बी लर्निंग अबाउट प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग।